Good morning, students. Let's understand the topic of conjunctions. Right? Now, what is a conjunction? Conjunction is that word in a sentence which joins group of words or words. It could be group of words like phrases or clauses or the sentences. Right? Like there are number of conjunctions, and broadly when it could be divided into three different types, that is coordinated conjunctions, subordinate conjunctions, and correlative conjunctions. Now in your class it's not discussed so much in detail like what are coordinating, subordinating, or correlative conjunctions. Here in your chapter it's just explain the usage of conjunctions through different sentences, and that's the best way to understand conjunctions. You need to remember that conjunctions are those words in a sentence which join words or group of words. Group of words can be a phrases or a clause or sentences, right? So let's see what are the major commonly used conjunctions which you must know, and they are really frequently used in the sentences. Let's take for example the first conjunction, and. And. Now, and is such a word that connects similar ideas. The ideas which are all similar. It's a coordinate conjunction. Now, what is coordinate? I just tell you, a conjunctions where such conjunctions which add two words or group of words or phrases which are independent grammatical concepts. They are not dependent on each other. For example, look here. I need some colored paper and a bottle of glue. So I need some colored paper. I need a bottle of glue. Totally, they are independent sentences, right? If I give you two sentences, I need some colored paper, I need a bottle of glue. Now, these are two independent sentences having no relation or dependency on each other. Now, when you join the two sentences, you will use and. Why and? Because these both are similar ideas. कि आपको क्या चाहिए? I need some. क्या? Colored paper and bottle of glue. So that is why you used and, because the idea was similar and you just did not repeat the word I need. Right? So this and is a coordinate conjunction. Right? And is used for joining two similar kinds of ideas. It could even join words as well. यहाँ इसने join group of words किया, that is separate sentences. यहाँ join cricket and tennis are my favorite games. अगर हम इसको दो sentences में separate करें तो क्या होगा? Cricket is my favorite game, tennis is my favorite game. So you can say, using the conjunction, you can say the same sentence in just one. That is, cricket and tennis are my favorite games. So this is the use of conjunction. Instead of saying the things separately, wherever it's a similar kind of idea, you can join using the conjunction and say it in simple one sentence. Now look here. There are two independent sentences. Mansi wrote the invitation cards. Mohit decorated the room. Now, why these are similar ideas? Because something like party की ही कोई तैयारी हो रही है. Both the sentences are indicating that there is some function or a party at home or some other place for which Mansi wrote invitation cards, जबकि Mohit ने ये किया. Right? So, both kind of similar ideas. So, you could say and. There are a number of conjunctions which could be used different at the same place to join. जैसे अब मैं आपको बोल रही थी, समझा रही थी, मेरे दिमाग में conjunction आई while. Now while is also beautiful conjunction and it could be used in this situation. I will explain you later how it could be used. Right? Now coming on to the next conjunction, but. But.
Now, but joins the contrasting words or sentences. That means contrasting idea. जैसे Anil is intelligent but careless. And careless नहीं बोला हमने, but क्यों बोला? क्योंकि यह इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट के साथ केयरलेस एक ऑपोजिट आइडिया हो गया ना, विच इज नॉट मैचिंग, है ना, टू इंटेलिजेंट. सो इसीलिए बिकॉज इट्स अ कंट्रास्टिंग आइडिया तो यू यूज्ड BUT but. John fell off a running bus but was not hurt. अब एक कोई चलती बस से गिरे और फिर चोट ना लगे, सो इट्स लिटिल ऑपोजिट ना, सोचने में कंट्रास्टिंग आइडिया है. सो दैट इज वाई BUT but. Now or is used wherever there is a choice or you have a option to go with, right? जैसे आप बाजार में जाते हो, मम्मा कहती हैं you can take the yellow dress or the pink dress, है ना. So that means आप कोई भी एक ले सकते हो. So you have a choice to choose between the yellow and pink. So that is why you used or to join the sentence. Similarly, you should hurry up, जल्दी करो, or you will miss the bus. यहाँ और इज द सेंस ऑफ नहीं तो की सेंस में, लेकिन आप देखो एक ऑप्शन है, या तो आप जल्दी जल्दी अपना पहुंचो, दूसरा ऑप्शन अगर नहीं पहुंचोगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस है. यहाँ और भी कोई आ सकता था, बट यहाँ और बिकॉज ऑप्शन दो ही है, या तो ट्रेन बस मिस हो जाएगी या आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, राइट. सो ऐसे सिचुएशन में भी हम और यूज करते हैं, राइट. और अगर आप कोई गेस्ट आता है घर पे, आप क्या बोलते हो? वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी? अब टी और कॉफ़ी में उसको आप चॉइस देते हो, है ना. सो दैट इज वाई लाइक वेर एवर देर इज अ चॉइस काइंड यू कुड यूज OR और, ठीक है. अब बिकॉज इज subordinating conjunction. Why subordinating? Because it's depending on one other sentence. Like Harjeet is absent because he has fever. Or now whenever because is used, आप ये देखोगे कि फर्स्ट सेंटेंस में कुछ बोला है और सेकंड सेंटेंस में उसका रीजन होता है, राइट. एक्सप्लेनेशन होती है कि क्यों. सो देखो, हरजीत इज एब्सेंट, क्यों एब्सेंट? बिकॉज ही हैज फीवर. तो ये इसका आंसर है ना कि वो एब्सेंट क्यों है. सो दैट इज वाई ऐसी सिचुएशन में जब आपका सेकंड सेंटेंस उसका आंसर दे रहा है तो आप क्या यूज करोगे? बिकॉज. और इसका उल्टा हो जाएगा SO, सो में क्या होगा? आपका जो कॉज है वो पहले होगा, रीजन पहले होगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ वो बाद में होगा. जैसे हरजीत को फीवर है इसीलिए वो स्कूल नहीं आया, राइट. सो द कॉज इज फर्स्ट एंड द रिजल्ट उसकी वजह से क्या हुआ इज लेटर इन द सेंटेंस, तब आप सो लगाओगे. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट बिकॉज एंड सो, राइट. तो अभी हमने कौन सी करी? एंड, बट, और, बिकॉज एंड सो, राइट. Abhi 5 conjunctions we have done. Now let's look for the next conjunctions through the sentences and exercise only. Now the conjunction that, it's just joining. और that कहाँ से लगती है? like एक तरह से explanation ही दी जाती है that के बाद. The teacher thinks क्या? That Sachin can become a good artist. अब हिंदी में अगर इसको लें तो ये कि, जब आप छोटी की लगाते हो हिंदी में, है ना, उसके आगे फिर एक्सप्लेनेशन देते हो. उसने कहा कि वो कल नहीं आएगा कि. सो ये जो कि वाला सेंस होता है जब आप सेंटेंसेस बनाते हो तो वहाँ आप दैट लगाते हो और दैट के आगे ऑलमोस्ट इस फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन ही होती है, राइट. बट नॉट लाइक बिकॉज में रीज़न होता है किसी चीज़ का कि वो चीज़ क्यों नहीं हुई. यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट है, उसने सोचा कि, उसने कहा कि, राइट. आई हैव हर्ड, क्या सुना?
दैट द स्कूल इज क्लोज टुमारो। अब यहाँ क्या की सेंस है, लेकिन क्या सुना कि स्कूल कल बंद है, राइट। सो दैट इस सेंस में यूज होता है। अब व्हेन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टाइम सेंस है ना। जूही वॉज स्टिल डूइंग हर होमवर्क, जूही अपना होमवर्क कर रही थी। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब ये देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये जूही वॉज स्टिल डूइंग हर होमवर्क इज स्टिल गिविंग सम मिस इनकम्प्लीट सेंस। सो यू नीड समथिंग, कब कब कैसे, कुछ क्वेश्चन दिमाग में रह जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर मैं बोलूँ द लाइट्स वेंट आउट, कब कब वेंट आउट हुई थी, तो मतलब दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट अपॉन दिस सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। दैट इज वाई इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट्स नॉट कोऑर्डिनेटिंग, राइट। सबऑर्डिनेट कर रहा है। सो एंड यहाँ टाइम सेंस है, जब। हिंदी में एक तरह से इसको हम कह सकते हैं जब, राइट। जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वो काम कर रही थी जब बिजली चली गई, राइट, गिविंग अ टाइम सेंस। अब लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन रीना वॉज गोइंग थ्रू द बुक। जब रीना पढ़ रही थी, शी केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल पिक्चर। सो व्हेन शी केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल पिक्चर, व्हेन शी वॉज रीडिंग द बुक और गोइंग थ्रू द बुक, राइट। So you have to just understand their usage through the example sentences. अब until is also a time sense, लेकिन यहाँ अगर हिंदी में देखें तो ये जब तक, the time sense, don't get off the train, जब तक पूरी तरह रुक ना जाए, until it has completely stopped, don't start moving until the lights turns. So it's kind of a condition and on the time sense also. जब तक ये हो ना जाए तब तक ये मत करना, right? So that's the sense of until. Now if is a conditional one. अगर, if you take a glass of milk, अगर तुम glass of milk लोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, अगर ये करोगे तो ऐसा होगा। So अगर वाली सेंस हिंदी में जब हम कहते हैं अगर, है ना, if you do so you will feel fatter, right? Now look at the second sentence, you must take off your shoes if you want to go inside the temple. मंदिर में जाना है, अगर मंदिर में जाना चाहते हो तो कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या है, ये इफ किसके आगे लगता है, कंडीशन के आगे, है ना। अगर जाना चाहते हो तो शूज उतारने पड़ेंगे, तो इफ बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, दैट बट डिपेंड्स कि उसके बाद वो पहले इफ के बाद वो कंडीशनल सेंटेंसेस होगा, ठीक है। जूते उतारने होंगे अगर तुम मंदिर में जाना चाहते हो। नाउ अनलेस इज ऑल्सो अ कंडीशन, जब तक की सेंस ही होती है इसमें, but somewhere like it's not giving a time, like you can enter unless you produce your identity card. अब इसमें कोई टाइम सेंस नहीं है ना। सो जब कोई टाइम सेंस ना हो तो आप unless लगाओ, टाइम सेंस आ रही है तो until लगाओ, बट ऑलमोस्ट सेम यूजेज होता है unless का, ठीक है। यू कैनॉट एंटर जब तक अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाओगे। You cannot go out to play unless you finish your homework. You will not get the money unless you sign this letter. वही जब तक की सेंस है, बट जब टाइम सेंस इतनी स्ट्रांग ना हो, टाइम का कहीं ज़्यादा नहीं है, राइट, तब आप unless, अदरवाइज आप until लगा सकते हो। although को हिंदी हम कहते हैं जब कि। Although the blankets were attractive, they were not warm. जबकि blankets खूबसूरत थे, लेकिन although के साथ but भी जाता है। नॉर्मली सेंस यही आती है although but, ठीक है, कि जबकि वो खूबसूरत नहीं थे लेकिन जबकि वो खूबसूरत थे लेकिन वार्म नहीं थे, कोजी नहीं थे। जबकि वो रिच है लेकिन सिंपल लाइफ जीता है, मतलब
कहीं ना कहीं लेकिन की सेंस आ रही है ना, बट को लेकिन कहते हैं, तो लाइक ऑल्दो बट, बीच में भी लग सकता है ऑल्दो। ही इज लीडिंग अ सिंपल लाइफ, वो लाइफ सिंपल जी रहा है, जबकि ही इज रिच, ऑल्दो ही इज रिच। और लाइक ऑल्दो एक बावजूद की सेंस में भी आता है, बावजूद इसके कि वो रिच है, वो सिंपल लाइफ जी रहा है। वी रेंटेड दिस हाउस, अब ये क्या है, सो दैट, सो दैट मतलब कोई रिजल्ट, ताकि, लाइक हमने ये हाउस रेंट पे दिया ताकि, सो दैट वी कुड लिव नियर द स्कूल, हम स्कूल के पास रह सके। दैट मीन्स आपने कोई एक्शन किया, उसका रिजल्ट हो पाए, उसके लिए जो हम कनेक्टर यूज करते हैं बीच में, सो दैट, मतलब इस एक्शन को ज्वाइन कर, यहाँ जो आपका एक्शन है ये पॉसिबल कब होगा, जब हम ये करा, राइट। सो दैट ये पॉसिबल हो सके, हमने ये किया। मिस्टर कॉल वेंट टू अ स्पेशलिस्ट सो दैट ही कुड गेट द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस, क्योंकि वो ये एडवाइस, बेस्ट पॉसिबल एडवाइस लेना चाहते थे। ये कब होगा, जब वो यहाँ जाएंगे, राइट। सो गए ताकि उनको एडवाइस सही मिल सके। नाउ यू इन पार्ट डी यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दो डिफरेंट वर्ड्स को या बातों को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और उसको आपने जस्ट अंडरलाइन करना है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। एंड देन दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज अगेन, वेयर यू विल अंडरस्टैंड, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल्स इतने सारे करे, जिसमें हमने दैट, व्हेन, अनटिल, इफ, अनलेस, ऑल्दो और सो दैट का यूज देखा। अब और इससे पहले बिकॉज, और, एंड, बट, इनका यूज देखा। अब ये एक्सरसाइज में बड़े सुंदर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिससे आपको इसका यूजेज ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्लियर होगा कि कहाँ ऑल्दो लगाना है, कहाँ अनलेस लगाना है। जस्ट गिव इट अ ट्राई ऑल्सो, देन वी विल डिस्कस बोथ डी, ई एंड एफ पार्ट्स नेक्स्ट टाइम, right? I hope like a little clarity to conjunction is now in your mind. For any doubts or queries, you're always welcome to ask. Thank you. Have a nice day.